معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے کالی آتما ایپیسوڈ نمبر 8۔ وہ شخص ٹہلتا ہوا دور تک نکل گیا اور تبھی اس کی نگاہ اس درخت کے نیچے پڑی ہوئی جہاں کوئی لیٹا ہوا تھا۔ وہ چونک پڑا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا وہ درخت کے قریب پہنچا اور پھر اس سے کچھ فاصلے پر ہی ٹھٹک گیا۔ اس نے درخت کے آس پاس خون کے بڑے بڑے دھبے دیکھے تھے اور دہشت زدہ ہو گیا۔ کچھ لمحوں تک تو وہ ہمت نہ کر سکا، مگر تجسس نے اسے آگے بڑھایا۔ قریب پہنچ کر اس نے اس شخص کے چہرے کو دیکھا اور اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، ارے جانو بھائی! اس نے جانو کے جسم کے لباس کو جگہ جگہ سے پھٹے دیکھا۔ وہاں بڑے بڑے گھاؤ تھے جن پر خون جمع ہوا تھا۔ ایک لمحے میں اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جانو کیمرہ مین مر چکا ہے۔ اس نے چیختے ہوئے وہاں سے دوڑ لگائی۔ کیمپ میں جب کچھ لوگ جاگ گئے تھے، کچھ ابھی تک سو رہے تھے، لیکن اس کی چیخو پکار سے سبھی جاگ اٹھے۔ گلزاری نے اپنے خیمے سے نکل کر کہا، اے کیا ہو گیا ہے تجھے بھوتنی کے؟ کیا شیر پیچھے لگ گیا ہے؟ گلزاری بھائی، جانو کی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے۔ لاش؟ گلزاری کا جیسے دم نکل گیا۔ وہ وہاں قتل کر دیا گیا ہے، کسی نے اسے ذرا دیکھو چل کر۔ دادا بھائی، گلزاری حلق پاٹ کا چیخا اور تھوڑی دیر میں وہاں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سب لوگ جاگ گئے تھے، ہیرو، ہیروئنیں، ایکسٹرا لڑکیاں، دوسرے ٹیکنیشین، سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو گئے اور اس کے بعد پورے کا پورا گروہ اس طرف چل پڑا جہاں جانو کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ کمال نے اس طرف رہنمائی کی تھی۔ جانو کی لاش کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ بات اس کے قتل کی ہونے کی تو تھی ہی، لیکن جس طرح جگہ جگہ سے اس کا گوشت اتار لیا گیا تھا وہ بڑی سنسی خیز بات تھی۔ دادا بھائی نے گلزاری سے کہا، گلزاری قتل کر دیا ہے اسے کسی نے، کوئی رکابت ہی ہو سکتی ہے، حالانکہ نہ یہ ہیرو تھا اور نہ ہی کوئی ایسا بندہ جسے کسی دشمنی میں قتل کر دیا جاتا۔ ہم لاش کو چھو نہیں سکتے۔ جاؤ پولیس کو خبر کرو جا کر، تھانہ چوکی تو دیکھی ہے نا ہم نے۔ ہاں دادا بھائی، مگر 2 بندے میرے ساتھ بھیج دو، میری اپنی حالت ٹھیک نہیں ہے، گلزاری نے کہا۔ جاؤ فقیر محمد، تم اور حفیظ جان، تم دونوں جیپ میں گلزاری کے ساتھ چلے جاؤ، تھانے جا کر اطلاع دو۔ ٹھیک ہے سر جی۔ جیپ میں بیٹھ کر وہ لوگ تھانے پہنچے۔ تھانہ انچارج ذرا صحیح آدمی ہی تھا جو اس وقت بھی ڈیوٹی پر موجود تھا، اور عملہ بھی۔ اگر افسر نیک ہوتا ہے تو عملے کے ٹھیک نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ گلزاری انچارج کے پاس جا کر بولا، سر جی قتل ہو گیا ہے۔ کہاں؟ انچارج چونک کر بولا، وہ جی ادھر دریا کے کنارے نیلم پوائنٹ پر۔ کس کا حادثہ ہوا ہے؟ وہ جو ہمارا کیمرہ مین جانو، کس نے قتل کیا ہے؟ سر جی آپ تو اس طرح پوچھ رہے ہیں جیسے قاتل کو ساتھ لے کر آئے ہیں ہم۔ آپ چلو جی ادھر لاش کو دیکھو، پھر پتہ چلاؤ کس نے قتل کیا ہے، ہمیں کیا معلوم۔ ہوں تو تم لوگوں کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا؟ قاتل مقتول۔ او بھائی اے ایس آئی، چل بھائی نفری تیار کر، دیکھتے ہیں کون قتل ہو گیا ہے۔ کیا کر رہے تھے تم لوگ دریا کے کنارے؟ وہ جی شوٹنگ کر رہے تھے، شکار کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری ہی گولی سے تمہارا آدمی قتل ہوا ہے اور اب تم کہانی بنا کر آ گئے ہو میرے پاس۔ او سر جی کیا باتیں کر رہے ہو آپ؟ ہم فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے، ڈائریکٹر دادا بھائی ہی ہیں، کیا سمجھے؟ اچھا فلمی یونٹ ہو؟ ہاں اطلاع ملی تھی مجھے اس علاقے میں کوئی فلمی یونٹ کام کر رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں ہم لوگ۔ پولیس انچارج نے تمام تیاریاں مکمل کیں اور اس کے بعد وہ ان لوگوں کے ساتھ چل پڑا۔ دونوں جیپیں آگے پیچھے چلتی ہوئی کیمپ پہنچی تو دادا بھائی اور دوسرے تمام افراد ابھی تک اسی درخت کے نیچے نظر آئے جہاں وہ جا کر رک گئیں۔ پولیس والے نیچے اترے اور وہاں موجود لوگوں کو پیچھے ہٹانے لگے۔ تھانہ انچارج اے ایس آئی کے ساتھ لاش کے نزدیک پہنچ گیا۔ لاش پر ایک کپڑا ڈال دیا گیا تھا اور اس نے کپڑا ہٹا کر لاش کو دیکھا اور آنکھیں بھینچ کر ناک چڑھا لی۔ توبہ، کس بے رحمی سے قتل کیا گیا ہے؟ ڈائریکٹر کون ہے؟
उसने सवाल किया और दादा भाई आगे बढ़ाया। मैं हूँ जी, ये मेरा असिस्टेंट गुलजारी है। हाँ तो डॉक्टर साहब आप ज़रा इस कत्ल की तफसील बताइए मुझे। ओ भाईजान मैं क्या तफसील बताऊं, अल्लाह जाने किसने इस बेचारे का ये हाल किया है। आपके यूनिट में से इसे किसी से उसकी दुश्मनी थी? नहीं जी, अल्लाह का फजल है, हम सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं और यही हमारी कामयाबी की दलील है। हम लोग बड़ी मोहब्बत से एक दूसरे का साथ देते हैं और किसी को किसी से कोई इख्तलाफ नहीं। बस जनाब अल्लाह की मेहरबानी है और इस तरह हम लोग बड़ी कामयाब फिल्में बनाया करते हैं। फिर भी इस कत्ल पर थोड़ी बहुत रोशनी तो आप ज़रूर डालेंगे। जी वो लाइट मैन से बात करते हैं, वो उस वक़्त रोशनी की ज़रूरत तो नहीं है। जी नहीं, मेरा मतलब है कि आप ये तो बता सकेंगे कि ये कत्ल कैसे हुआ। लीजिए अफसर जी, कमाल करते हैं आप। हमारे सामने अगर ये कत्ल होता तो क्या हम किसे कत्ल होने देते? आप क्या फजूल बातें कर रहे हैं। मेरा मतलब तो ये है कि आखिर कोई ना कोई तो इसका कातिल होगा ही। तो और क्या जी, आप देखो ना जी, छुरी चाकू का खेल हुआ है, खुद ब खुद तो उसने ये खेल खेला नहीं होगा। दफतन ही ऐसे ही बोल पड़ा। साहब जी एक बात पर गौर किया आपने? हाँ बोलो क्या बात है। इसके बाजू पर से गोश्त काटा गया है, सीने पर से गोश्त काटा गया है, रान पर से काटा गया है। आप देखो जिधर जिधर ज़्यादा गोश्त होता है वहीं से काटा गया है और कटा गोश्त आसपास मौजूद नहीं है। पुलिस अफसर की आंखें हैरत से फैल गई। अरे हाँ भाई, तो ऐसा ही। और साहब जी थोड़े दिन पहले का एक केस आपको याद होगा। ओहो, वो हवेली तो सामने ही है साहब जी। आपको याद है कि ऐसी एक लाश हमें हवेली के तय खाने में कस्तून से बंधी मिली थी और उन दोनों स्टूडेंट की लाशें भी उसी तरह की थीं, उनका गोश्त भी गायब था। और साहब जी वो अलमारी में से हमें गोश्त के टुकड़े मिले थे। वो एक खुदा के बंदे, तूने मेरी खोपड़ी हिला दी। ओ यार ऐसी बातें ज़रा अलग चलकर करते हैं, इधर आजा मेरे पास, इंचार्ज ने कहा और एएसआई को थोड़ा आगे बढ़ गया। तो तेरा मतलब है कि? साहब जी बिल्कुल ही वैसा केस है तो सही। तू ये कहना चाहता है कि सफ़ेद हवेली से इसका कोई ताल्लुक़ है? होना चाहिए जी, होना चाहिए। अभी खामोशी पकड़ तफ्तीश करते हैं, यहाँ इन लोगों के बयानात लेते हैं, उसके बाद हवेली चलते हैं। जी साहब जी। और पुलिस इंचार्ज अपनी कार्रवाई में मसरूफ़ हो गया। दादा भाई, गुलजारी और दूसरे लोगों के बयानात लिखे गए। अलबत्ता इन बयानात में 3 बंजारनों की तलाश या हवेली तक जाने का कोई तज़किरा नहीं आया था। उसकी ज़रूरत ही नहीं महसूस की गई क्योंकि किसी के जहन में भी ऐसा कोई तसव्वुर नहीं था। ख़ास तौर से दादा भाई वगैरह के जानों की मौत का तल्लुक़ हवेली के किसी मसले से हो सकता है। लाश पुलिस की तहवील में ले ली गई और एक दूसरे एएसआई को चंद कांस्टेबलों के हमरा यहाँ से लाश उठवाकर शहर के अस्पताल पहुँचाने की हदायत कर दी गई। इंस्पेक्टर अपनी जीप में बैठकर हवेली की जानब चल पड़ा। उस ज़हीन एएसआई को अपने साथ ले लिया था जिसने कुछ दिन पहले हवेली में होने वाली वारदात की निशानदही की थी। हवेली में पहली ही मुलाकात ओगलूस से ही हुई थी जो बदस्तूर की यारियों में काम कर रहा था। पुलिस वाले अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने ओगलूस को इशारे से अपने पास बुलाया। ओगलूस पहले ही उस थाना के इंचार्ज को देख रहा था। वो सादा सी शक्ल बनाकर उनके सामने पहुंच गया। कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? ओगलूस ने पुलिस वालों को गौर से देखा और बोला, माली हूँ जनाब और कियारियों में काम कर रहा हूँ। इस हवेली का तो नक्शा ही बदल गया। हालांकि ज़्यादा अरसा नहीं हुआ जब यहाँ एक इंतहाई संगीन वारदात हुई थी। क्या तुम इस हवेली के नए चौकीदार हो? माली हूँ जनाब, चौकीदार भी समझ लीजिए। हवेली के मालिक तो राव अदरीस हैं जो मुल्क से बाहर थे मगर अब यहीं रहते हैं जनाब। क्या मतलब इस हवेली में? जी जनाब। तभी इस हवेली का नक्शा बदला हुआ नज़र आ रहा है। पहले तो ये बड़ी उदास और वीरान पड़ी हुई थी। तुम्हें मालूम है कि यहाँ 3 कत्ल हुए थे? नहीं साहब, हम यहाँ नौकरी किए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। जब से हमारे मालिक आए हैं उसके थोड़े दिन के बाद मुझे यहाँ नौकरी मिली है। मालिक कहाँ है तुम्हारे? अंदर है साहब। कौन कौन है? मालिक साहब और उनके बीवी बच्चे। मैं तुमसे यही मालूम कर रहा था कि कितने बीवी बच्चे हैं उनके। बीवी साहब जी एक ही है, बच्चे 2 हैं, एक बेटी और एक बेटा। और मुलाजम कितने हैं इस हवेली में? और भी कई मुलाजम हैं साहब जी, मगर हमसे ये बातें क्यों पूछ रहे हैं?
पुलिस वाले से सवाल नहीं किया जाता, समझा बूढ़े आदमी। अब जाओ अपने मालिक को इतला दो कि पुलिस ऑफिसर आया है। जी। ओगलोस अंदर चल पड़ा। पुलिस ऑफिसर ने एएसआई को देखते हुए कहा, ये शख्स कुछ अजीब सा नहीं लगता? इसका कदो कामत, चाल ढाल, इसकी उम्र और इसकी सेहत, ना जाने मुझे क्यों लगता है कि जैसे इसमें कोई ख़ास बात हो। एएसआई ने कोई जवाब नहीं दिया। ओगलूस ने राव अदरीस को इतला दी कि पुलिस आई है। राव अदरीस ने खुद बाहर निकलकर पुलिस इंचार्ज से मुलाकात की। पुलिस ऑफिसर राव अदरीस की शख्सियत से मुतासर हुआ था। कहने लगा, माफ़ी चाहता हूँ जनाब, क्या आपको आपके एडवोकेट ने थोड़ा अरसा पहले इस हवेली में होने वाली वारदात के बारे में बताया था? कौन से एडवोकेट की बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? रियाज शाह था उसका नाम। हाँ, रियाज शाह ने कुछ अजीब सी कहानी सुनाई तो थी मुझे कि यहाँ हवेली के तय खाने में 2 स्टूडेंट्स मौत के घाट उतर गए और एक चौकीदार यहाँ मारा गया था। लेकिन इस कहानी के साथ उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई थी जो हमारे लिए नाकाबिले कबूल और नाकाबिले फ़हम थी। वो क्या बातें थी? रियाज शाह का कहना था कि हवेली असीब ज़दा है और चूँकि बहुत अरसे से वीरान पड़ी है, इसलिए यहाँ असीबों का बसेरा है। लेकिन आप यकीन कीजिए ऑफिसर, यहाँ तो बहुत सुकून है, इससे ज़्यादा पुरफिज़ा मकाम और कोई ना होगा। दरिया की तरफ से सेली सेली हवाएं चलती हैं तो माहौल बहुत ही हसीन हो जाता है। बड़ा पुरअमन माहौल है यहाँ का कि आप उसी पुरानी तफ्तीश के सिलसिले में यहाँ आए हैं। नहीं, यहाँ से थोड़े फासले पर एक वारदात हो गई है। अच्छा, खैरियत क्या हुआ? राव अदरीस ने सवाल किया और इस दौरान राव एहसान भी आ गया था। वो जी, एक फिल्मी यूनिट यहाँ काम कर रहा था, उनका एक आदमी कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने वाले का तरीका बिल्कुल वही था जो इस हवेली में हुआ। आप बराह करम मुझे ज़रा तफसील से बताइए। बस जनाब, एक लाश हवेली के अंदरूनी हिस्से में सतून से बंदी मिली। उसे 10-15 दिन पहले हलाक किया गया था। हैरत की बात यह थी कि उसके बदन का गोश्त उतार लिया गया था। बिल्कुल ऐसे लगता था कि जैसे जिंदा आदमी को सतून से बांधकर उसके जिस्म के हिस्से उतार लिए गए हों। और फिर एक पिकनिक पार्टी यहाँ दरिया के किनारे पिकनिक मनानी आई हुई थी और उसके 2 स्टूडेंट्स, एक लड़का और एक लड़की, इस हवेली में आ गए। आए तो बहुत से लोग थे, लेकिन वो दोनों यहाँ गुम हो गए। आपको हवेली के नीचे तय खाने के बारे में तो पता है। ज़ाहिर है कि ये हवेली मेरी सदियों की मलकियत है, मुझे क्यों नहीं मालूम होगा। इस तय खाने में उनकी लाशें पाई गई थी और सबसे ज़्यादा हैरत की बात जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि तय खाने में बनी एक अलमारी से हमें इंसानी गोश्त के टुकड़े पड़े मिले, जो बड़ी एहतियात से इस तरह रखे गए थे जैसे कोई उन्हें किसी ख़ास वजह से महफूज करना चाहता हो, ख़ास वजह से कि शायद कोई उन्हें इस्तेमाल भी करना चाहता हो। ओहो, क्या वाकई? लो जी, मैंने खुद बरामद किए थे, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। बात बहुत अजीब है, लेकिन आप इस नई वारदात के बारे में बता रहे थे। हाँ जनाब, उसके बदन से भी उसी तरह गोश्त उतार लिया गया है। जवान आदमी था। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या किस्सा हो सकता है। वैसे आप इस हवेली के बारे में क्या कहते हैं राव साहब? भाई, आप यकीन कीजिए, मेरे लिए तो बड़ी पुरसकून जगह है। मैंने या मेरे बच्चों में से किसी ने यहाँ कोई ऐसी बात नहीं देखी जो खौफज़दा कर देने वाली हो। लेकिन ये वारदात किस जगह पर हुई? वारदात की जगह ज़्यादा फासले पर नहीं है। इस कत्ल की बाबत तो खैर पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों को ज़रा भी किसी बात का शुबा हो तो आप हमसे ज़रूर रजू कीजिएगा। ठीक है ऑफिसर, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तशवीश तो वाकई मुझे भी हो गई है। वैसे ये किस्सा क्या है? खैर, कोई भी अगर ऐसी वैसी बात हुई तो मैं आपको ज़रूर इतला दूंगा, और अगर हो सके तो यहाँ आप कुछ नौकरों की तादाद बढ़ा लीजिए जो हिफाजत वगैरह करते रहें। ख़ास तौर से मैं चौकीदारों की बात कर रहा हूँ। ठीक है ऑफिसर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस ऑफिसर इस तफ्तीश के बाद वहाँ से चल पड़ा था। कुछ दिनों तक तफ्तीश होती रही, लेकिन असल वारदात ही पुलिस की समझ में नहीं आई थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई आदमखोर कबीला महज़ब आबादी में आकर आबाद हो गया है। अगलोस के बेटे बेटियां न जाने कहां कहां निकल गए थे और न जाने क्या क्या करते फिर रहे थे।
उधर ओगलूस पूरी इत्मीनान के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा था। अब उसे भी महज़ब दुनिया के इंसानों जैसी अक्ल आती जा रही थी। चुनाचा दूसरी बार उसने एक माहीगीर को शिकार किया, जो बेचारा कहीं दूर से मछलियां पकड़ता हुआ अपनी छोटी सी कश्ती में यहाँ तक आ गया था। दरिया के किनारे ओगलूस से उसकी मुलाकात हुई। ओगलूस ने उसे पानी और खुराक की पेशकश की थी और उसके बाद उसके बारे में पूछा था, क्या नाम है तुम्हारा? करीम बख्श। ये क्या कर रहे थे? मछलियाँ पकड़ रहा था। क्यों? मैं मछेरा हूँ। हमारा कबीला यहाँ से काफ़ी दूर नूरा घाट के पास आबाद है। आज मैं अपने छोटी सी कश्ती में यहाँ तक निकल आया। हम लोग इतनी दूर तक आते नहीं हैं क्योंकि आगे जाकर दरिया की रवानी बहुत तेज़ हो जाती है। फिर आज कैसे आए? आज मछलियाँ नहीं मिली थी। अब क्या करोगे? अभी मछलियाँ तलाश करोगे? क्या तुम मछलियाँ बेचते हो? हाँ, आज मेरे मेहमान रहो। मेरी बीवी तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। हम तुम्हें पैसे भी देंगे। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे पास बहुत से पैसे बेकार पड़े हैं। असल में हमारा मालिक हमें तनख्वाह देता है, मगर हमारे लिए वो पैसे बेकार जाते हैं क्योंकि हमारा कोई खर्च नहीं है। तुम आज रात यही क़याम करो, यहाँ इस दरख्त के नीचे। रात को मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगा, तो उसी वक्त हम तुम्हें पैसे देंगे। मेरी बीवी तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। जैसे आपका हुक्म बाबा जी। करीम बख्श खुशी खुशी वहाँ ठहर गया और उसने अपनी कश्ती पानी से निकाल ली थी। ओगलूस वापस चला गया और उसने अपनी बीवी से कहा, देवताओं ने हमें एक बार फिर हमारी तलब दी है। ये तलब बदनसीब मछेरा था जिसे उसके बदन के गोश्त से महरूम करके उसकी कश्ती में डालकर दरिया के सुपुर्द कर दिया गया था। बूढ़े माँ बाप इस तरह अपना काम चला रहे थे और नौजवान बेटे बेटियां अभी इस नई दुनिया के माहौल से रोशनास हो रहे थे। नई दुनिया ने बहुत बाई थी और वो अपने भरपूर कदम जमा कर यहाँ कुछ करना चाहते थे। ओगलूस को यहाँ ज़ोलारा मिल गया था। ज़ोलारा जो आदमखोर नहीं था, बल्कि उसकी आबादी आदमखोर आबादियों से बहुत दूर थी। वो अपने इलाकों की लोग दास्तानें बनाया गया था, लेकिन ओगलूस को ये उम्मीद नहीं थी कि ज़ोलारा उसे यहाँ इस महज़ब दुनिया में नज़र आ जाएगा। ओगलूस ने पहचान लिया था ये ज़ोलारा ही था, लेकिन उसने खुद को ज़ोलारा पर ज़ाहिर नहीं किया। वो नहीं चाहता था कि किसी को उनके बारे में मालूम हो। अलबत्ता उसने ज़ोलारा का पीछा ज़रूर किया था और फिर जिस मकान में ज़ोलारा दाखिल हुआ वहाँ शबाला भी मौजूद थी। देवताओं, ये सब क्या है? ये आग और पानी कैसे यकजा हो गए? कहाँ शबाला खाजान की बेटी और कहाँ ज़ोलारा? आखिर कैसे? सरबुलंद और सरकश पहाड़ों के दरमियान बर्फ़ के ताहद निगाह फैले हुए मैदानों से परे किसी कदर ऊंचे और पथरीले टुकड़े पर गार्जिया का कैद खाना था। वो होलनाक कैद खाना जिसकी कहानियाँ दिलों को दहलाने के लिए सुनाई जाती थीं और जिसका नाम सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। लोग दुआएं करते थे कि मरने के बाद उनकी रूह भी उधर से ना गुजरे। उस कैद खाने का रकबा तकरीबन 2 मुरब्बा मील था। कैदियों की रिहाइश के लिए लकड़ी के बैरक बने हुए थे। उनके सामने वसी मैदान था जहां कैदी परेड और दूसरे काम करते थे। पथरीले टुकड़े के चारों तरफ गहरे और नाकाबिले अबूर ढलान थे। नीचे जाने का सिर्फ एक रास्ता था और उस रास्ते की सख्त निगरानी होती थी। निगरानी की खास ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि यहाँ आने वालों का मुकम्मल तारफ़ यहाँ के मुंतज़मों से कराया जाता था। ये तारफ़ एक मखसूस बैरक में होता जो यहाँ की अस्तला में अजायब घर कहलाती थी और उस अजायब घर में बड़ी बड़ी नायाब चीज़ें थी। बेशुमार कैदियों के ढांचे जिनकी मौत बड़े फनकाराना अंदाज में हुई थी। मसलन चंद कैदियों को सिर्फ धूप में ज़िंदा सुखा लिया गया था। कुछ को गर्म पानी के टब में डुबोकर तजर्बा किया गया था कि इंसानी हड्डियाँ कितनी गर्मी बर्दाश्त कर सकती हैं। गोश्त का तो कोई सवाल नहीं था क्योंकि उसे तो हड्डियों से उतर ही जाना होता है। उसके अलावा मुख्तलिफ इंसानी अज़ा, नाक, कान, हाथ, पाँव सब चीज़ें मौजूद थी। उसके बाद एक और बैरक थी जो दूर एक कोने में बनी हुई थी। उस बैरक में रियासत के कारीगरों के तैयार किए हुए अजियत रसानी के वो आलात थे जिन्हें देखकर रूह जिस्म में फड़फड़ाने लगती थी।
हर नए आने वाले को बड़े दोस्ताना अंदाज में इन तमाम चीज़ों के बारे में रोशनास कराया जाता था और ये बड़ी मोहब्बत से कहा जाता था। अगर कोई बुरा काम ना करते तो यहाँ तक ना पहुँचते, लेकिन खैर अब यहाँ आ ही गए हैं तो बेहतर है कि यहाँ पुरसकून ज़िंदगी अपनाओ। फरार की कोई कोशिश मत करना, कोई ऐसी शरारत मत करना जिसकी वजह से बाद में इन ढांचों में शरीक होना पड़े। इस लंबी चौड़ी तफसील के बाद बड़े दिल गुर्दे वाले या दीवाने ही यहाँ से फरार की सोचते थे, और अगर अमल कर डालते थे तो वही होता था जिससे उन्हें पहले ही आगाह कर दिया जाता था, और इस सिलसिले में किसी रियायत का सवाल ही नहीं पैदा होता। हर शख्स को मालूम था कि उसकी कौन सी हरकत क्या सज़ा होगी, और उसके बावजूद अगर कोई उससे वो हरकत सरजद हो जाती तो फिर मौजज़ों का इंतज़ार फजूल ही होता था। सज़ा तो मुकद्दर होती है, और कैद खाने का ये इलाका सिर्फ उसी काम के लिए मखसूस था। यहाँ कुर्बो जवार में खासी आबादी थी, लेकिन सिर्फ मर्दों की। औरतों का यहाँ नामो निशान नहीं था। यहाँ तैनात लोगों को साल में 1 माह की छुट्टी मिलती थी, जिसे वो यहाँ से दूर अपनी बस्तियों में गुजारते थे जहाँ उनके अपने आबाद होते थे। बाकी 11 माह वो भी एक तरह से कैद होते, जंजलाए हुए होते, इसलिए मुस्तैद रहते, और कैदियों से तो उनकी अज़ली दुश्मनी होती। ना ये कम वक्त होते और ना उन्हें अपनों से दूर ये ज़िंदगी गुजारना होती। वैसे यहाँ लाए जाने वाले कैदी भी मामूली लोग नहीं होते थे। गार्जिया के कैद खाने में सिर्फ उन्हीं लोगों को भेजा जाता था जिनके बारे में यह यकीन होता कि बस्ती की कोई और जेल इतनी मजबूत नहीं कि इन जैसे सरकशों को रोक सके। चुनाचा यहाँ आने वाले रियासत में ज़बरदस्त शोहरत के हामिल होते थे, और उनके कारनामे भी ऐसे होते कि बस सुनते रहो और कांपते रहो। उस शैतानी कैद खाने का इंचार्ज खाजाल था। लंबी स्याह दाढ़ी, जंगली सांड जैसी मोटी गर्दन और किसी जंगली भैंसे किसी ताकत बदन में रखने वाला खाजाल। और ये तज़किरा तो फजूल ही था कि उस कैद खाने के लिए खाजाल को क्यों मुंतखब किया गया था। ज़ाहिर है कि दरिंदों के पूरे गिरोह को कंट्रोल करने के लिए इन सब से खौनख्वार दरिंदे की ज़रूरत थी, और वह खाजाल इन औसाफ पर पूरा उतरता था। वो बाल बच्चों वाला इंसान था, लेकिन अब शहर में अपनी बीवी बच्चों के दरमियान जाने को उसका दिल नहीं चाहता था। ये वहशत कदा उसकी फितरत से हम आहंग था, और उन सब से जुदाई खाजाल को शाख गुजरती थी। यही वजह थी कि वो 1-2 महीने के बाद जब उसकी बीवी और बच्चों को ही उसकी याद सताती थी तो वो खुद तवील फासला तय करके यहाँ आ जाते और चंद रोज़ क़याम के बाद चले जाते। उस रोज़ भी दूर दूर तक निगाह रखने वाले मुहाफ़िज़ों ने एक बुलंद पहाड़ी की चोटी से पतली और बल खाती हुई सड़क पर निगाह डाली तो उन्हें एक रंगीन धब्बा नज़र आया, और वो दोनों चौंक पड़े, शायद गाड़ी है। हाँ, मुमकिन है कि रियासत से कोई और कैदी लाया जा रहा हो। दूसरे ने तबसरा किया, कैदी ऐसी खूबसूरत गाड़ियों में नहीं लाए जाते बेवकूफ़। मैं बताता हूँ कि इसमें कौन है। पहले कैदी ने मदबराना अंदाज में कहा, कौन है? खाजाल की बीवी बच्ची हैं, इतनी दूर से ये बात बता सकता हूँ, मुहाफ़िज़ ने कहा, और दूसरे मुहाफ़िज़ के चेहरे पर अजीब से तासरात उभर आए। क्यों, क्या सोचने लगे? पहले मुहाफ़िज़ ने उसके चेहरे को बगौर देखते हुए कहा, और उसके चेहरे पर मैनी खेज मुस्कुराहट थी। कुछ नहीं, मुझे अपनी बीवी याद आ गई थी। 8 माह गुजर गए उससे मिले हुए। कैसी अजीब ज़िंदगी है। खाजाल के बीवी बच्चों को देखो, सब कुछ भूल जाओगे दोस्त। कमबख्त रीछ ने क्या तकदीर पाई है। मैं तो सोच कर हैरान होता हूँ कि उसकी हसीन नरमो नादक बीवी दिल में उसके बारे में क्या सोचती होगी। फजूल बातें मत सोचो दोस्त, उनसे क्या फ़ायदा। दूसरे ने ठंडी सांस लेकर कहा, तूने शबाला को देखा ही नहीं। दीवाने एक बार उसे देख लेने वाले ज़िंदगी भर उसे दोबारा देखने के ख्वाहिशमंद रहते हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ। शबाला खाजाल की बेटी है? दूसरे ने पूछा। हाँ, दो कामत रीछ की हसीन बेटी। ऐसे अल्फाज तुझे ज़ुबान से भी नहीं निकालने चाहिए। मुमकिन है तेरे किसी दुश्मन के कान में पड़ जाएं। क्या वैसी खाजाल तुझे ज़िंदा छोड़ देगा? अगर उसके लिए अगर मौत भी आ जाए तो परवाह किसको है? पहले मुहाफ़िज़ ने कहा, और आश को किसी शक्ल बनाकर बैठ गया। रंगीन गाड़ी अब वाज़े हो गई थी।
चमकदार साज से आरास्ता घोड़े सुबक रफ्तारी से दौड़ रहे थे और उनकी अकब में चमकदार पहियों के सहारे खूबसूरत डिज़ाइन की गाड़ी सड़क पर तैर रही थी और उसकी खिड़कियों से चंद चेहरे झांक रहे थे। एक 9 साला खूबसूरत लड़के का चेहरा, एक 13 साला मोहनी सूरत वाली कम सिन दोशेदा और उसके साथ एक और चेहरा था, दूध और मैदे के मज़े से गुंदा हुआ मोमी चेहरा जिस पर जवानी रोशन थी। सेबों की सुर्खी रुखसारों पर ठहर गई थी। याकुवत के हसीन पत्थर से तराशे हुए होंठ अलग से उसके चेहरे पर चिस्पा किए गए थे। गजाल की आंखें चुरा ली गई थीं और उनमें शोखी के रंग भर दिए गए थे। अजीब सहर तराज शक्ल थी जो देखने वालों के दिल में बार बार देखने की हवस पैदा कर देती थी। माहौल के तासर ने याकुवत के काशों में एक दिलकश खम पैदा कर दिया था जिसे मुस्कुराहट का नाम भी दिया जा सकता था। यही शबाला थी, गार्जिया के वैशी हुक्मरान खाजाल की बेटी। गाड़ी को दूर से देखने वाले सिर्फ ही दोनों मुहाफिज ही थे और कुछ दूसरे लोगों ने भी उसे देखा था और खाजाल तक इतला पहुंच चुकी थी। खाजाल पूरी दुनिया से नफरत करता हो लेकिन अपने बच्चों और बीवी से ज़रूर मोहब्बत करता है। ये बात उनके आने की खबर सुनकर उसके चेहरे के नकूश से नुमायाँ थी और फिर उसने गार्जिया की बस्ती के दाखिली दरवाजे पर उस गाड़ी और उसके मुसाफिरों का इस्तकबाल किया था। दरमियानी उम्र की हसीन खदोखाल वाली औरत गाड़ी से निकली और अपनी उम्र और बच्चों का ख्याल किए बगैर खाजाल से लिपट गई। खाजाल उसकी कमर पर थपकियां दे रहा था। ओह खाजाल, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी सेहत कैसी है? औरत उसे टटोल टटोल कर देख रही थी। बिल्कुल ठीक हो जाने मन, इस जिस्म में किसी खराबी की गुंजाइश ही कहाँ है? खाजाल ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी मोहब्बत उस वक़्त सिर्फ मेरे लिए है क्योंकि दूसरे तुम्हारे पास थे, लेकिन मेरे दिल में उन्हें लिपटाने की ख्वाहिश है जो मेरी निगाहों से दूर थे। वो अपने बच्चों की तरफ बढ़ा और उसने एक एक बच्चे को लिपटा लिपटा कर प्यार किया। शबाला को उसने ऊपर से नीचे तक देखा। क़यामत का बदन था जिसे लिपटा कर प्यार करते हुए शायद खुद खाजाल भी झिझक रहा था, लेकिन खुद शबाला ने उसकी झिझक दूर कर दी और उसने सुनहरी बाजू फैलाए और बाबा कहकर उसकी गर्दन में डाल दिए। तब खाजाल ने भी जोश पदरी में उसे लिपटा लिया। कैसे हो मेरे बच्चे? अपने बाप को माफ़ कर देना जो तुमसे इस कदर दूर रहता है कि उसे खुद तुम्हारी तब्दीलियों के बारे में कुछ नहीं मालूम होता। उसने तमाम बच्चों को बाजू में भरते हुए कहा। हम सब ठीक है बाबा, बच्चों ने कहा। आओ घर चलें, मुझे नए सिरे से सारे काम तरतीब देकर दूसरों को हदायत देनी होगी क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी में तो कोई काम नहीं कर सकता। खाजाल ने बच्चों को गाड़ी में सवार कराया और फिर खुद अपने घोड़े पर सवार हो गया और फिर वो बस्ती की तरफ चल पड़े जिसका सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत मकान खाजाल का था। खाजाल की खुशियाँ उसके चेहरे से टपक रही थी। आम हालात में वो बेहद खुश्क और खौनख्वार फितरत का मालिक था, लेकिन इस मौका पर वो इंसान बन जाता था और देखने वालों को उसकी इस तब्दीली पर बड़ी हैरत होती। खाजाल ने दुनिया भर की नेमतें अपने बच्चों के सामने ला डाली और उनसे दुनिया जहान की गुफ्तगू करने लगा। बैरूनी दुनिया की बातें और वो इस अंदाज में सुन रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया की बातें हों और उसके चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी थी। कैदियों का क्या हाल है बाबा? नन्हे शहजाद ने दिलचस्पी से पूछा। उसे यहाँ का कैद खाना बेहद पसंद था जहाँ इंसानों के साथ अजीब अजीब सलूक होते थे। कोड़ों से लहूलुहान जख्मी कैदी उसे बड़ी दिलचस्प मालूम होते थे। खाजाल की गिरफ्त ने उन पर ज़िंदगी तंग कर दी शहजाद, और अब अफसोस में हैं कि उन्होंने जुर्म क्यों किए। खाजाल ने अपने चौड़े हाथ को शिकंजे की तरह कसते हुए कहा। क्या उनको अब भी मार पड़ती है? किसकी मजाल है कि सरकशी करे? फिर भी जिसकी पेशानी पर तनाव है वो मार खाता है ताकि उसके आज़ाद ढीले हो जाएं। मैं कल कैद खाने की सैर करूंगा, बच्चे ने खुश होते हुए कहा। ज़रूर मेरे बच्चे, उन्हें खूब गौर से देखा करो और सोचा करो कि जुर्म का अंजाम कैसा भयानक होता है, ताकि कभी तुम्हारे जहन में जुर्म का ख्याल ना आए और तुम हमेशा उससे खौफज़दा रहो। शबाला मुस्कुरा रही थी बाप की बात पर और उसने कहा, मेरा भाई बेहद शरीर है बाबा, लेकिन यह जुर्म कभी ना करेगा। आप इस बात को लिख लें। हाँ, देवताओं से मेरी दुआ है कि वो कभी जुर्म ना करे। मैं भी कैद खाने की सैर करूंगी बाबा।
क्या कैदियों से कोई खतरा है? दीवानी हुई हो? किसी की यह मजाल है कि जो खजाल की बेटी के सामने निगाह ऊंची करे? खजाल ने सीना तान कर कहा और फिर हंसकर बीवी से बोला, शबाला का जिस्म बढ़ गया है, फितरत वही है, बिल्कुल बची है। तुम्हें याद है कि ये बचपन से कैदियों का तमाशा देखने की शौकीन थी। हाँ, और उसके बरअक्स शेराना वो हमेशा की बुज़दिल है। माँ ने 13 साल लड़की की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। उसने तुम्हारी फितरत अपनाई है, खजाल हंसते हुए बोला और फिर शेराना की तरफ रुख करके कहने लगा, क्यों बेटे, क्या तुम कैद खाना देखने नहीं जाओगी? नहीं अबू, अगर वो जानवरों का तमाशा होता तब भी मैं शायद ना देख सकती, और उस वक्त जबकि वो इंसान हैं, शेराना ने जवाब दिया। खजाल ने हैरत से बेटी की बात सुनी। अपनी उम्र से बड़ी बात कर रही थी, ताहम उसने कहा, क्या वो इंसान जानवर से बदतर नहीं होते बेटे, जो भयानक जुर्म करके दूसरों की ज़िंदगी से खेलें? यकीनन होते हैं बाबा।